مختلف جوابات رہیں گے، لیکن اس کے بعد ہمیں جواب پر پہنچے ہے۔ ہم نے سے کوئی ساتھی بتایا کہ ہم کیوں جڑے، ہمارا مقصد کیا ہے اجتماعیت سے جڑنے کا، ہم کیوں آگے بیٹھے اجتماع کے اندر، کیوں ہم جماعت اسلامی میں شریک ہوئے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں۔ مائک کی ضرورت ہے، خواتین میں سے کسی کو تو دے سکتی آواز دے۔ میری آواز نکل چلی جائے گی، میری آواز ضرورت ہے تو دے دیں۔ ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ بتائیں، کوشش ہم یہ کریں گے کہ تقریر والا انداز نہ ہو، بلکہ جو کہ پہلے 20-25 منٹ ہے اس کے اندر بھی کچھ ہم سمجھانے والا معاملہ کریں، گفتگو والا تو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ تو تحریک اور تنظیم سے ہم کیوں جڑے، ایک دم اسپیسیفک جواب دے جو ہم لوگ فائنلی اکثر دیتے ہیں۔ جلدی ایک گھنٹہ نصیر صاحب نے پڑھی اقامت دین، اللہ کی رضا حاصل ہو، ہے نا۔ جیسے ہمارے سامنے سوال یہ آتا ہے کہ ہم کب کیوں جڑے ہیں، تھوڑا بہت دھیان ہمارے دھول بھی ہٹا دینے کا فوراً دماغ میں آ جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ کئی لوگوں نے جو دوسری اجتماعیت سے جڑے ہیں ان کا مقصد بھی اللہ کی رضا ہے، لیکن انہوں نے الگ الگ طریقے لوگوں نے اختیار کیے۔ ہم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، جو ہم نے صحیح سمجھا وہ یہ کہ ہم اس دین کو، اللہ کے دین کو اس دنیا میں نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو نافذ کرنے کا ذریعہ بنا کر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ ایک دم کلیئر اسٹینڈ ہے ہم لوگوں کے، سب لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہمارا جو تحریک سے جڑنے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اور رضا کے لیے ہم جو ہے اس دین کو، اقامت دین کو یہاں پر نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ آج جو ہمارا یہ عنوان ہے حضرت ساتھیوں، اس لیے میں یہ سوال کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہم اس میں چھیڑیں گے نہیں، کہ ٹوٹلی جو عنوان ہے یہ اقامت دین کیسے ہو، اس کے لیے ہم پریکٹیکلی کیا کر سکتے ہیں، ہمارا اپروچ کیسا ہونا چاہیے، یہ تمام باتیں بتائی گئی ہے۔ یہ کتاب یہ تقریر جو ہے خرم اللہ صاحب کی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بہت ساری باتیں اس کے اندر ایسی آئے جو ایسا لگے کہ بھائی اس کے اندر تو اللہ کی رضا کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس پہلو سے بات نہیں ہوتی، یہ اس کا موضوع ہی نہیں ہے۔ ہمارا موضوع جو ہے اقامت دین ہے، ہمارا کرنے کا کام کیا ہو اس کے اندر بتایا گیا، پہلی چیز۔ دوسری چیز حکمت تنظیم یا حکمت جماعت جسے کہتے ہیں، جب ہمارے جو اکثر جو تقریریں ہوتی ہیں اس کے اندر نظم و ضبط، اطاعت، شورا، دل کی کیفیت، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، وہ اس عنوان کا حصہ نہیں ہے، بالکل اللہ صاحب کہتے ہیں۔ آگے یہ کہتے ہیں وہ کہ جب ہم حکمت دعوت کہتے ہیں، حکمت انقلاب کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دعوت کے کام کو، انقلاب لانے والے کام کو کس طرح اچھے طریقے سے، مؤثر طریقے سے، افیکٹو طریقے سے ہم کریں۔ اسی طرح جب ہم حکمت تنظیم کی بات کریں، حکمت جماعت کی بات کریں، تو اس کا مطلب سے یہ نکل کے آتا ہے اب کس طرح سے ہمارا جو نصب العین ہے، ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا جو ٹارگیٹ ہے، اس کو اچیو کرنے کے لیے کس طرح بہتر سے بہتر مؤثر انداز سے ہم کام کریں۔ تو یہ اس کے عنوان کا مطلب ہے یا اس کے معنی ہے کہ ہم کس طرح سے جو ہے اس کام کو، جو ہم تحریک سے جڑے ہیں، اس کو مؤثر انداز سے اور ایفیشنسی کے ساتھ کریں، تاکہ ہماری جو منزل ہے وہ ہمارے سے قریب تک ہوتے جائے۔ آگے قرآن اللہ صاحب یہ بتاتے ہیں کہ تنظیم یا جماعت جو ہوتی ہے، بنیادی طور پر اس کے دو کام ہوتے ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو جمع کرتی ہے، لوگ جو ہے افراد کو جمع کرتی ہے، اجتماعیت، اور وہ کام جو انڈیویجول لیول پہ نہیں ہو سکتا ہے نا۔ دیکھیے اجتماعیت یہ ٹاپک جو ہے تھوڑا سا ہمارے خاص طور سے جو ذمہ داران ہیں، شورا کے ذمہ داران، پاکٹ انچارجز یا شعبے کے انچارج، ان کے لیے بہت زیادہ اہم اس لیے ہو جاتی ہے کہ یہ تقریب بھی انہوں نے تربیتی اجتماع کے درمیان کی ہے ذمہ داروں کے بیچ میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو جماعت کا جو اصل کام ہے وہ افراد کو جمع کرنا ہے، جو کام انڈیویجول لیول پہ نہیں ہو سکتا۔ آگے وہ مثال دیتے ہیں کہ جس طرح ایک آدمی جو ہے پان کی دکان اکیلا بیٹھ کے کھول سکتا ہے، لیکن وہی شخص کو کہیں کہ کوئی ملٹی نیشنل کمپنی چلانا ہے تو ایک شخص نہیں چلا سکتا۔ وہ کتنا بھی ذہین ہو، کتنی بھی محنت کرے، کتنی بھی صلاحیتیں ہو، کتنا بھی سرمایہ لے، لیکن وہ ایک دکان تو چلا سکتا ہے لیکن ایک ملٹی نیشنل کمپنی نہیں چلا سکتا۔ اسی طرح وہ آگے بتاتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے سیب کو گر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ زمین کے اندر کشش شامل ہے اور اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے، لیکن وہی شخص جو ہے اکیلا اپنی علم کے بنیاد پہ، اپنی سوچ کے بنیاد پر چاند پر نہیں جا سکتا۔ اگر آپ کو چاند پر جانا ہے تو آپ کو ٹیم افورٹس لگیں گے، اور اس کی جو دوسری چیزیں اجتماعیت لگیں گی، ایک ٹیم لگیں گی جو آپ کو چاند تک
पाकिस्तान की सरजमीन तक पहुंचा सकती है। तीसरी चीज इसी से रिलेटेड उन्होंने बताई है कि ख्वाहिशें करना या तमन्नाएं करना ये एक आदमी का काम है। हम यहाँ बैठ के ख्वाहिश कर सकते हैं कि फला चीज़ होना चाहिए, फला चीज़ होना चाहिए, लेकिन उस ख्वाहिशों को अगर तकमील तक पहुँचाना है तो उसको इज्तिमाइयत की ज़रूरत है और लोगों की ज़रूरत है। और तंजीम का काम ये होता है जो ख्वाहिश है, जो मकसद वो तय करती है, उसको हासिल करने के इज्तिमाइयत को तश्कील दे। एक चीज़ और बहुत ज़्यादा अहम उन्होंने इसी से रिलेटेड बताई है, इंशाल्लाह उनके जो अहम नुकात से तेज़ी से इसलिए बोल रहा कि वो असल है जो बाद में आने वाले हैं कि तंजीम के अफराद का जो कैलकुलेशन उन्होंने बताया है कि वो 1 और 1 2 वाला कैलकुलेशन नहीं है। हमारे से किसी ने कहा कि भाई 1 और 1 कितना होता है, तो हम कहते हैं कि 2 होते हैं। तो मुराद साहब कहते हैं कि तंजीम और तहरीक के अंदर 1 और 1 2 नहीं होते, बल्कि 1 और 1 11 होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब तंजीम के तहरीक के अफराद 1 से 2 जब मिलते या 3 4 हो जाते हैं तो उनकी सलाहियतें और उनके जो कमिटमेंट है, उनका जो इल्म है और मकसद से जो लगाव है, उसकी लगन है, ये जब 2 आदमी जब मिल जाते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो 11 के बराबर आता है। देखिए ये फर्क है। अगर हम काम को करना चाहते हैं तो ये समझने की ज़रूरत है कि अगर 1 और 1 2 होते, दोनों मुराद साहब ये कहते हैं कि 1 और 1 2 नहीं होते, तहरीक और तंजीम और जमात के अंदर 1 और 1 11 होना चाहिए और उसका रिजल्ट जो है वो 11 लोगों के काम के बराबर आना चाहिए। तहरीक और तंजीम का काम है। आगे हिकमत तंजीम के मायने को एक्सप्लेन और करते हैं कि हिकमत तंजीम के मायने ये है कि तंजीम को इस काबिल बनाया जाए कि जो चीज़ मतलूब है उसको मुमकिन बना सके, मुमकिन से आगे बढ़ के उसको हकीकत तक हम पहुँचा सकें, है ना। ये हिकमत तंजीम है, यानी हम जो चीज़ सोचते हैं, जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो मुमकिन हो और मुमकिन के साथ साथ इस प्लानिंग से काम किया जाए कि वो इंशाअल्लाह फ्यूचर में जो वो हमारे सामने हकीकत बन जाए और हमारे सामने मौजूद है। दूसरी चीज़ हिकमत तंजीम के ताल्लुक से जो उन्होंने बताई है वो कि काम की जो रफ्तार है वो तेज़ होना चाहिए, उसका आगे भी इंशाअल्लाह बात आएगी। तीसरी चीज़ उन्होंने बताया कि अगर आप अपनी तंजीम को, अपनी जमात को अगर मौसर बनाना चाहते हैं तो कम से कम वसाइल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट लाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। ये ना हो कि आप बहुत सारे एफर्ट लगा रहे प्रोग्राम के ऊपर, बहुत चीज़ें हो रही है, बहुत सारी लवाजमात है, बहुत सारे मुकर्रर सेट किए जा रहे हैं, लेकिन उसकी जो रफ्तार जो स्पीड से उसके असरात होना चाहिए वो असरात जो नहीं हो पा रहे। आगे ये भी कहते हैं कि उसकी रफ्तार ऐसी नहीं है कि कैलकुलेट करके बता दी जाए। हर शख्स को चाहिए, हर मुकाम को चाहिए, हर जिम्मेदार को चाहिए तो अपना कैलकुलेशन करे और अपनी रफ्तार तय करे। इस रफ्तार से हमको इस तंजीम और तहरीक को लेकर चलना है। आगे उन्होंने मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन और तहरीक मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या तो इसका फर्क बताया कि जो मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन रहती है, जो छोटे मोटे काम करते हैं, उनके काम को फिक्स रहते, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमने कहा कर ले तो कुछ लोगों ने अगर ये तय कर लिया कि हम सब लोगों को खाना खिलाएंगे उम्रा के अंदर गरीबों को, तो उनका एक लगा बंधा काम है, वो उसी को करते हैं और उसी को करना है। उनके तरीक़ेकार, उनका काम करने का अंदाज और तहरीक के काम करने के अंदाज के अंदर फर्क होना चाहिए। ये उन्होंने बताया, काफ़ी डिटेल है, हमारे पास वक्त नहीं हर चीज़ को डिटेल में समझे, आप लोग बाद में इसको पढ़ सकते हैं। एक जुमला मैंने डायरेक्ट इसलिए कोट किया है यहाँ पर कि ये सारी तकरीर का जो है जिंदगी जो है वो जैसा मरकज़ी मजमून कहते हैं उस तरह से मरकज़ है। वो ये कि हमारी जमात मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके सामने चलती हुई चीज़ को महज चलाना मकसद नहीं है। और मुराद साहब ये कहते हैं कि हमारी जो जमात है, हमारी जो तहरीक है, या ऐसी नहीं है कि एक चल रही है चीज़ उसी को बस चलाना है, बल्कि इसका मकसद पेशरफ्त है। इसका मकसद ये है कि ये दिन ब दिन है आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना। हमारी इज्तिमाइयत हम समझते हैं फला लेवल पे पहुँचिए, अगली स्टेज पे जब थोड़े दिन के बाद हम देखें तो उसकी जो पेशरफ्त होना चाहिए, उसका अहम मकसद ये है कि माशरे को मुसक्कर करे, यानी वो माशरे को फतेह करे, अपनी जो आइडियोलॉजी, अपना जो मकसद बनाया है जो लोगों तक पहुँचाए और लोग उससे कन्विंस हो जाए, माशरे को मुसक्कर करे, उसका मकसद फैलना है और गिरफ्त में लेना और गालिब हो जाना है। ऐसे साथियों ये जुमला हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि तहरीक, तंजीम, जमात इस्लामी या हम जिस इज्तिमाइयत से जुड़े उसका मकसद क्या है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, तहरीक और तंजीम का मतलब ये नहीं है कि हम किसी चलती हुई चीज़ को चलाएं, बल्कि इसका मकसद पेशरफ्त है। इसका अहम मकसद माशरे को मुसक्कर करना है, इस मकसद का फैलना और उसको गिरफ्त में लेना है और गालिब हो जाना है। ये अजीज साथियों कुछ बातें थी जो मुरब्बी साहब ने बेसिकली बताई थी। उसके बाद जो उन्होंने बताया कुछ 10 उसूल बताए हैं, उसमें 3 उसूल उन्होंने बुनियादी तौर पे बताया कि 3 चीज़ें हैं ये जड़ की हैसियत रखते हैं और 7 चीज़ें हैं जो इसकी शाखें हैं। 3 जड़ के ताल्लुक से उन्होंने बात बताई है कि सबसे पहले तो मकसद का
किस मकसद के तहत इज्तिमाई से जुड़े। जैसे पहले जो सवाल आया था कि हमारे हर फर्द को, हमारे हर साथी को ये मालूम होना चाहिए कि हम किस मकसद के तहत इज्तिमाई से जुड़े। साथी होता अक्सर ऐसा है कि हम अगर थोड़ा हमारे आसपास गौर करें, हमारे कैडर पे गौर करें, तो बहुत सारे लोग या कुछ लोगों को ऐसे मिल जाएंगे जो आपसे अपने अखलाक से या इज्तिमा के अट्रैक्शन से या बहुत सारी चीज़ों से मुतासिर होकर हमारे साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन उन लोगों को ये मालूम नहीं रहता कि ये तहरीक का मकसद क्या है और किस मकसद के लिए काम कर रही है। हम लोग इस पर थोड़ा सा सोचे। ऐसे अफराद जो हमारे, इसका नुकसान ये हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद हो सकता है कि उस बंदे की ज़िंदगी में कुछ कमी पेशी आए, नशे को फराज आ जाए, तो आपको छोड़कर चला जाएगा, इसके इम्कान ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने कही है वो ये कि मकसद का शऊर होना चाहिए। इसके बावजूद कि हमारे इज्तिमात में, हमारे लिटरेचर में, हमारी किताबों में, हमारे दुरूस में, हमारा हदीस की दर्स हदीस में मकसद की बातें आती हैं, लेकिन उसके बावजूद गुरम साहब ये कहते हैं कि इसके इम्कान है कि वो शऊरी तौर पर हमारे सामने ना हो, या मध्यम हो जाए या वो बोझल हो जाए। तो मकसद का शऊर जो हमेशा सामने होना चाहिए। हम हर काम को ये सोचें कि हम किस मकसद के तहत कर रहे हैं या हमारे इज्तिमाई से जोड़ने का मकसद क्या है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने बताई है कि असल काम, ये जो जड़ें बताई, पहली जड़ तो ये कि मकसद का शऊर, दूसरी जड़ हिकमत तंजीम की है कि असल काम गुरम साहब उस चीज़ को कहते हैं जो आने, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा समझने की कोशिश करें कि आने वाला जो कल है, जिसके लिए हम कल के लिए कोशिश करना चाहते हैं, उस कल के लिए जो आज काम हो। नहीं तो होगा ये कि हम आज के लिए आज काम करेंगे, तो आज के बाद फिर दोबारा आ जाएगा, फिर तीसरी बार आ जाएगा, और आज आते रहेगा, वो कल आएगा ही। गुरम साहब कहते हैं कि हम जिस कल को देखना चाहते हैं उसकी प्लानिंग आज करें, आज उसके लिए काम करें। हम चाहते हैं कि एक हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद उम्रा के अंदर फला शोबे के अंदर, फला एक्टिविटी के अंदर फला तब्दीली आना चाहिए, तो उसकी प्लानिंग और उसका काम आज करना पड़ेगा। और आज जो काम करेंगे उसका रिजल्ट जो है वो कल हमें दिखाई देगा। नहीं तो हम काम करते रहेंगे और वो कल आएगा नहीं, हम आज भी जिंदगी गुजारते रहेंगे। तीसरी चीज़ जो जड़ उन्होंने बताई है वो ये कि काम के नतायज और उसके असरात हैं। अजीज साथियों, होता ये आगे उन्होंने बताया है कि हम जो काम करते हैं तो उसका जो पैमाना है वो ये होता है कि हमारे अंदर डिसिप्लिन है, नज़्म व ज़ब्त है, लोग टाइम पर आ रहे, टाइम पे जा रहे, कई साल से इज्तिमात हो रहे और बराबर पाबंदी से हो रहे, हमारे अफराद जो है माना इनानतें भी दे रहे। गुरम साहब कहते हैं कि ये जो है काम के जो असरात है, उसके जो नतायज है, वो इन तमाम ज़ाहिरी चीज़ों को देख कर हमको अकल नहीं करना चाहिए, बल्कि हम जो काम कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में, माशरे में, उसके अगर नतायज आपको देखना है तो आप ये देखें कि माशरे के अंदर उस काम की वजह से कितनी तब्दीली आई। आगे वो मिसाल देते हैं कि अगर हम देखें कि पुलिस का डिपार्टमेंट है, साफ सुथरे यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, टाइम पर पहुंच रहे, सैल्यूट कर रहे हैं और बराबर से पाबंदी से हाजिरी भी दे रहे हैं, उसके बाद अगर हम ये नतीजा अखज़ कर लें कि भाई ये बहुत अच्छी पुलिस है, ये तो हमारा गलत तज्जिया होगा। बल्कि पुलिस का तज्जिया इस बात पर होगा, मौजूद है कि नहीं, कि उस पुलिस की वजह से जो इस माशरे के अंदर कितने जुराइम पर काबू पाया गया और कितनी फीसद उसने परफॉर्म करा। वही मामला जमात का है कि हम जो कुछ काम कर रहे हैं उसके नतायज हम देखिए। हमारे मुख्तलिफ शोबे दावत है, शोबे खिदमत कल के इस्लामी माशरा है, हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसके असरात माशरे के अंदर कितने हो रहे हैं, ये उसका जो पैमाना होना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं या काम की जगह पर, काम के नाम पर किसी और चीज़ में मुलविस है या उसकी वजह से हमारा ध्यान हट चुका है। आगे 7 चीज़ें उन्होंने बताई है जो इसकी शाखें हैं। असल में काफ़ी डिटेल है, मेरी ख्वाहिश है आप लोग दरख्वास्त है कि किताबचे को पढ़ें और उसके पॉइंट नोट करें। मैं बहुत तेज़ी से इसलिए बोल रहा कि मुमकिन नहीं है कि उसको 20 से 25 मिनट में कंप्लीट कर दिया जाए। ये 3 जड़ों के बाद 3 जड़ मकसद का शऊर, असल काम क्या है, और तीसरी चीज़ है कि नतायज उसके जो माशरे के ऊपर जो